Good morning, children. But today we are going to attempt the question number 10 from the sheet. Okay, the problem is he write a program to input a string in uppercase and print the number of consecutive alphabets pairs in that string. Okay, children. So now look at the example. The input is given as Abhijit, and in Abhijit, children, we can see that the first two letters are A, B. Okay, so you know that in the alphabet list also B appears after the A, means and A appears before the A. Sorry, A appears before the B. So means A and B are forming one consecutive alphabet pair. In the same way, children, you can look at the third and fourth letter also. H, I. Okay, so you know that I appears after the H in the alphabetical order and H appears before the H. Okay, so H and I, they have only the difference of one space. And in the same, children, we can see the fourth and fifth letter I and J. Okay, so here also again the same thing we find. So three pairs are there in the given string. Okay, now look at the problem, children. The first four lines, all of you know PSVM and scanner. After that, from here we start system.out.println, enter a sentence. Okay, or enter a word, whatever you want. So suppose that I inputted Abhijit. And children, this word is entered in the variable str. Okay, so I mark the index of its characters. So you know that the length of Abhijit is 8 character, means all the characters are stored from 0 to 7. Okay, after that look at the next line, that is str equal to str dot to uppercase. Okay, children, suppose that if you enter the name or the string in lower case or in the mixed case, so then I will convert all the character of that word in uppercase only. Okay, because in the problem it is told that you have to input the string in uppercase. Okay, after that int x, you know that x will be the counter for our loop, and c equal to 0. Children, c will count that how many pairs are there. After that, char ch1 and ch2. Children, now again in this problem also, children, we have to fetch two character at one time. Okay, why? Because children, I will fetch the character of current index and its next index, and then we have to find out whether they are the consecutive or not, यानी एक के बाद एक आने वाले हैं कि नहीं. So children, what should be the logic to check whether both the characters are consecutive or not? So children, all of we know about the ASCII code. Okay, you know that when we work with the capital characters, so then they have the ASCII code from 65 टू 90. ओके, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का जो एस्काई कोड है वो कितना है, 65 से 90. तो सपोज बेटा कि दो करेक्टर है मेरे पास, एक है ए और एक है बी. तो आपको पता है कि ए का जो एस्काई कोड कितना होगा, 65, और बी का कितना होगा, 66. ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या है कि अगर दो कैरेक्टर बेटा कॉन्जिक्यूटिव होंगे, तो अगर आप सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला अगर माइनस करो तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. यानी दोनों में स्काई कोड 1 का डिफरेंस होगा. ठीक है, या अगर आप ए में से बी माइनस करो तो आंसर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, दो कैरेक्टर फेच करेंगे और दोनों का जो डिफरेंस है वो चेक कर लेंगे कि इफ़ द डिफरेंस इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कि दे आर फॉर्मिंग द कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर पेयर. ओके, तो आइए यहाँ पे प्रोग्राम में चलते हैं बेटा. देखिए, मैंने 0 से लेके लेस देन str डॉट लेंथ -1 तक का एक लूप चलाया. यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा कि -1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यानी कि आप ध्यान दो तो लेंथ कितनी है, 8, तो 8 -1 यानी 7 से लेस देन यानी कि 6 तक लूप चलेगा. तो यानी मेरा लूप जो चलेगा x का, वो कैसे कैसे चलेगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ch1 एंड ch2 को फेच करते रहेंगे. तो आइए देखते हैं. पहली बार बेटा वैल्यू ऑफ x इज 0, कम इन साइड ch1 इक्वल टू str डॉट कैरेट एक्स, यानी कैरेट 0 फेच करो. क्या निकल के आ जाएगा बेटा, यहाँ पे a निकल के आ जाएगा. फिर ch2 इक्वल टू str डॉट कैरेट एक्स प्लस 1. तो बेटा x की वैल्यू 0 है, तो x प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा. ठीक है, तो यानी कि कैपिटल B निकल के आ जाएगा आपके पास ch2 में.
ठीक है, तो बेटा मैंने यहाँ पे फर्स्ट दो कैरेक्टर्स फेच कर लिए 0 एंड 1 वाले, एंड नाउ वी हैव टू चेक वेदर दे आर फॉर्मिंग द कॉन्जिक्यूटिव पेयर और नॉट, एंड फॉर दैट लुक एट द नेक्स्ट लाइन। मैंने क्या बोला, इफ CH2 माइनस CH1 इज इक्वल टू 1, यानी कि सेकेंड कैरेक्टर में से फर्स्ट वाला कैरेक्टर माइनस कर दीजिए, यानी कि बी में से ए माइनस कर दीजिए। ठीक है, और देखिए 1 आ रहा है क्या। तो बेटा यहाँ पे फिर थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि दैट हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट वन कैरेक्टर फ्रॉम एनदर, क्या ऐसे लिखना वैलिड है। ठीक है, तो आपको याद हो तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि दैट फॉर यू दीज आर द कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला CH2 माइनस CH1, यानी कैपिटल बी में से कैपिटल ए माइनस करो। तो आपको याद है ना मैंने क्या बोला था कि आपको लग रहा है कि कैपिटल बी में से कैपिटल ए माइनस हो रहा है, बट आपका जो कंप्यूटर सिस्टम जो कंपाइलर है वो तो ए बी समझता ही नहीं है। उसके लिए बी कितना है 66 और ए कितना है 65। ठीक है ना, तो यानी वो इनको जानते हो कि मेमोरी में नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है। तो 66 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि मेरा आंसर सही में 1 आ रहा है। तो यानी सी प्लस प्लस सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 आने का मतलब पता है ना आपको, यानी कि ये जो ए और बी है दे आर द कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट पेयर। सही में बी और ए एक यहाँ पे पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा पहला आंसर बेटा ट्रू हो गया और काउंटर मैंने बढ़ा दिया। इसके बाद अब ये लूप ऊपर जाएगा x प्लस प्लस, नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 1। ठीक है, अंदर आइए CH1 इक्वल टू str.caret1, क्या निकल के आएगा बेटा कैरेट 1 पे b। ठीक है, और फिर str2 डॉट कैरेट एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू 1 है यानी कि कैरेट 2 निकालिए, क्या निकल के आ जाएगा आपका h निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि यहाँ से अब आप जो है ज़रा इसको चेक करिए। तो अब आपका जो है एच का जो एसकाई कोड है वो कितना होता है 72, और बी का कितना होता है 66। तो अब आप जब CH2 में से CH1 माइनस करेंगे यानी 72 में 66, तो आंसर कितना आएगा 6 का आएगा, यानी कि बेटा बी और एच में 6 का गैप है, यानी कि दे आर नॉट द कॉन्जिक्यूटिव पेयर। ओके, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट पेयर में केवल 1 का गैप होता है, लेकिन बी और एच में 1 का गैप नहीं है, 6 का गैप है। ठीक है, तो बेटा इट मीन्स कि दे आर नॉट फॉर्मिंग द पेयर। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ बोला है कि जब आंसर इज इक्वल टू 1 हो CH2 माइनस CH1 तभी हमें काउंटर बढ़ाना है। तो अब की बार आपका काउंटर नहीं बढ़ेगा। ठीक, फिर एक और देखते हैं x प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू अब कितनी हो गई बेटा 2 हो गई। तो CH1 में तो कैरेट 2 निकालिए, यानी h निकल के आ जाएगा कैपिटल H, और CH2 में str.caret x+1, तो x की वैल्यू 2 है यानी यहाँ पे 3 वाला निकल के आएगा। तो 3 पे क्या है बेटा कैपिटल I। ठीक है, तो कैपिटल H में से कैपिटल I माइनस करना है। ठीक है, तो कैपिटल H का बेटा आपको पता है कि कितना होता है, कैपिटल H का होता है 66, सॉरी 72, और I का कितना होता है 73। ठीक है, तो अब आप क्या करिए कि जो है 73 में 72 माइनस करिए, कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 73 में 72 माइनस करने पे 1, क्योंकि आपने क्या किया है CH2 में से CH1 यानी I में से H माइनस किया। ठीक है, तो I का SI कोड 73 और H का 72। क्लियर है, तो आंसर 1 आ गया, यानी कि यस ये भी एक पेयर फॉर्म कर रहा है। काउंटर एक और आगे बढ़ जाएगा। फिर आगे चलिए x प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू बेटा अब 3 हो गई, तो यहाँ पे 3 का निकालेंगे, तो 3 में क्या आएगा I। ठीक है, और इसका कितना आएगा j आएगा। ठीक है, 4 पे, तो अब आप j में से i माइनस करिए, यानी 74 में 73, तो अभी भी आपका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी आपका पेयर फॉर्म कर रहा है i और j। ठीक है, 3 एंड 4 भी पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो काउंटर एक और बढ़ जाएगा। तो अब आप आई होप कि अब आप इसका लॉजिक समझ गए होंगे। फिर जब आप 4 पे आओगे तो क्या क्या निकलेगा, j और e निकलेगा। तो आपको पता है कि e में से j माइनस करोगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, दोनों में 1 का गैप नहीं है। फिर 5 पे आइए, तो 5 पे आओगे तो 5 एंड 6 निकलेगा, तो e और e। ठीक है, दोनों ही सेम है, तो यानी कि इनमें तो 1 का गैप है ही नहीं, 0 का गैप है, तो ये भी पेयर नहीं फॉर्म करेगा। और सबसे लास्ट में बेटा x की वैल्यू 6 होगी, तो 6 पे जब आप होगे तो 6 और 7 निकाल लोगे, e और t। ठीक है, तो आपका e और t निकलेगा, और जब आप t में से e माइनस करोगे तो भी आपको पता है कि 1 का गैप नहीं आ रहा है, t में से e और 1 का गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये भी पेयर नहीं फॉर्म कर रहा है। और बेटा बस यहीं पे लूप एंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए जब आप 6 पर हो तभी 6 और 7 ये आखिरी जो पेयर फॉर्म हो सकता है चेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि द लूप शुड रन टिल str.length -1, यानी कि लूप चलेगा 6 तक। अगर आपने -1 नहीं लगाया तो क्या
होगा, योर प्रोग्राम विल प्रोड्यूस एन रन टाइम एरर। ठीक है, कैसे कि आप सोचिए अगर आपने लूप -1 ना लगाया होता तो लूप चलता 7 तक, तब क्या होता, CH1 इक्वल टू str.caret7, तो 7 पे तो t निकल के आ गया। ठीक है, फिर अगली लाइन में क्या होगा, str.caret x+1, यानी 7 + 1 8 का निकालो। अब आपको पता है कि इंडेक्स नंबर 8 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। सही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तभी आपको ये वाला नहीं यूज करना है। क्लियर है ना। फिर ये खैर यहीं पे आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, 7 पे पहुंचते ही बाहर आ जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट पेयर्स आर सी। ठीक है, तो ये जो सी की जो काउंटिंग आई है 3, ये अब आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। क्लियर है बेटा, तो आई होप कि बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था। ठीक है, और बहुत ही ईजिली आपने यहाँ पे आई होप कि जो है समझ गए होंगे, कर लिया होगा। अगला जो बेटा हमारा प्रोग्राम होगा क्वेश्चन नंबर 11, वो आपको अटेम्प्ट करना है अपने आप। ठीक है, और फिर जो है अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसके आंसर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और वो भी, और उसमें भी यही सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है, और वो बोर्ड में अपीयर हुआ प्रोग्राम है, एंड आई होप कि सब लोग उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।